کہ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دیربالا میں ریلا 5 بچوں کو بہا لے گیا۔ ٹانک میں ایمرجنسی نافذ کر کے اسکول 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی نہ رک سکی۔ بلوچستان میں مزید 4 افراد جانیں گنوا بیٹھے۔ پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں بارشوں سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 234 ہو گئی۔ ریلیف آپریشن کے دوران جعفر آباد، نصیر آباد، کوئٹہ، زیارت، دکی اور صحبت پور میں امدادی سامان پہنچایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دیربالا میں موسلادھار بارش سے دریائے پنچکوڑا میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ اسکول سے آتے ہوئے 5 بچے ریلے میں بہہ گئے، 3 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ منگورہ کے ندی نالوں میں طغیانی سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا، متعدد مویشی بہہ گئے۔ جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی بارشیں ہوئیں، ٹانک میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آزاد کشمیر جہلم ویلی میں بھی بادل جم کر برسے، جبکہ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور ٹریک پر پانی آنے کی وجہ سے آج متعدد ٹرینیں معطل رہیں گی۔ قراقرم ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس، تیزگام اور جعفر ایکسپریس پٹری پر نہیں آئیں گی۔ پاکستان ریلوے کے مطابق کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی قراقرم ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس معطل رہے گی۔ کراچی اور راولپنڈی کے درمیان پاکستان ایکسپریس اور تیزگام ایکسپریس، جبکہ کراچی سے پشاور کے درمیان چلنے والی عوام ایکسپریس معطل رہے گی، جبکہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس بھی نہیں چلے گی۔ کوٹری اور روہڑی کے درمیان مونجودوڑو پیسنجر ٹرین بھی معطل کر دی گئی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں جون سے اب تک 903 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں سے 326 بچے اور 191 خواتین شامل ہیں، جبکہ 1293 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کیا کہ ملک بھر سے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے ملک میں انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ حکومت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے مقامی انتظامیہ اور صوبوں کو مزید وسائل درکار ہے۔ ہمیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر شراکت داروں اور ڈونرز کو متوجہ کرنا ہوگا۔ سیلاب میں پھنسے ہزاروں لوگ ریسکیو اور ریلیف کے منتظر ہیں۔ تو کراچی میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاری کا سلسلہ جاری، صوبے کے بیشتر اضلاع میں انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ 2 ماہ سے مسلسل بارشوں سے لاکھوں ایکڑ پر فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھی بہہ گئے۔ سندھ میں 2 ماہ سے مسلسل بارشوں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ تاریخ کی بدترین تباہی، 10 لاکھ سے زائد خاندان گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ گھر، دکانیں، کارخانے اور فصلیں سب ہی میں سیلابی صورتحال میں بہہ گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں، جبکہ مواصلاتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں ایسی سیلابی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگست میں معمول سے 600% زائد بارشیں ہوئیں۔ اب تک 300 اموات، 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے، 15 لاکھ گھر تباہ، 1 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے روڈ بلاک کر کے امن و امان کے مسائل پیدا نہ کریں۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ مہینے میں 350% نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ اس وقت تک جو اگست میں بارشیں ہوتی ہیں اس سے 600% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ تقریباً 300 اموات ہو چکی ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ 15 لاکھ کچے گھر دیہاتوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ 90% کاشتکار اپنے کراپس، اپنی کاشت کو کمپلیٹ طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، جو کہ 2 ملین ایکڑ سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی کیٹاسٹروفی، بڑی ایمرجنسی اس صوبے میں پہلے نہیں ہوئی۔ پورا سندھ اس وقت ایک دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ 86,000 ٹینٹس کی سٹاک میں موجود تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں
हमें इस सूबे के सब लोगों की मौलाना फजल रहमान ने पार्टी की तमाम तंजीमों को सैलाबी इलाकों में इमदादी कैंप कायम करने की हिदायत कर दी है। सरबराह JUI ने एक वीडियो बयान में कहा कि वुज़रा और इंतज़ामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, लेकिन सूरत हाल बेबसी का मंजर पेश कर रही है। भर के तूल अर्ज़ में बारिशों का जो सिलसिला जारी है और जिसने सैलाबी रेलों और तूफ़ानी रेलों की अब शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे कि पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आ गया है। मुसलसल हुकूमत की कोशिश, वज़रा अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, लेकिन बेबसी का मंजर नज़र आ रहा होता है। इंतज़ामिया जगह जगह पर बेबस नज़र आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम की निचली सतह तक की तमाम मातहत तंजीमों को हिदायत देना चाहता हूँ कि हर सतह पर कैंप कायम किए जाएँ, मुखय्यर हज़रात को दावत दी जाए, उनको खाने पीने की अशियाए ज़रूरत मुहैया की जाए, खेमे मुहैया की जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा पर जमात इस्लामी ने शाहराह कायदीन पर धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे। जुम्मे को सूबाई इलेक्शन कमीशन पर धरने का भी ऐलान कर दिया। तकसीम करके अपनी दुकानें लगा रहे थे, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब लोग कोई सिंधी महाजिर की बुनियाद पर फैसला नहीं कर रहा। लोग बल्दियाती इंतखाब में वाज़े तौर पर ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो शहर का काम करेगा, शहर को ऑन करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत की ईमा पर एक शर्मनाक फैसला किया है और कराची के 3 करोड़ से कहीं ज़ायद लोगों के हक पर डाका डाला है। हम इस फैसले की मुज़ाहमत करेंगे। हम अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करके एहतजाज भी करेंगे और एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। हम अदालत भी जाएंगे। कौन सा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किया गया है? इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और वो तमाम उनके बाजगुजार इदारे जो रिपोर्टें बना बना कर दे रहे हैं, सब मिले हुए हैं और कराची को बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को और उनकी इत्तेहादी जमात को और इलेक्शन कमीशन को शायद पसंद नहीं है। वो अपनी मर्जी के नतीजे चाहते हैं। सैलाब में डूबे हुए लोग हैं, उसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया है? अवाम से फंड मांग रहे हैं। शर्म आती है तुम्हें अवाम से फंड मांगते हुए? हजारों अरब रुपए तुम्हें हम देते हैं, कराची देता है, तो तुम कराची को तो क्या तुम अंदरूनी सिंध को डेवलप नहीं कर सके? तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने का फैसला समझ से बाहर है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाने में कोई मुश्किलात नहीं, हुक्मरान शिकस्त से भाग रहे हैं। जब भी इंतखाबात होंगे मेयर तहरीक इंसाफ का आएगा। दूसरी दफा इन्होंने डिले किए हैं सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन, खास तौर में जो हैदराबाद कराची में होने थे। हैदराबाद में तो मैं समझता है बाकी हैदराबाद डिवीजन का पूरे तबाही आ गई है बारिश की, लेकिन कराची डिवीजन के जो इलेक्शन उन्होंने डिले किए हैं इससे बिल्कुल एक ही साफ वाज़ेह है। NA 245 की जो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा ना, सारे चोरों को मिलके इनको आ गया खौफ और ये खौफ से इलेक्शन से भाग गए। तो आप कितना डिले कर लेंगे? आप आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, कल नहीं कराएंगे, अगले महीने कराएंगे। जब भी कराची में इलेक्शन होगा यहाँ वोट सारा का सारा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। अगला मेयर इंशाल्लाह होगा ही तहरीक इंसाफ से। कब तक भागोगे? हम तुम्हारा पीछा करेंगे। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मिसाइल फायर करने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल चलाने के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत के गैर जिम्मेदार इक़दाम पर अफसरान को सज़ाएँ गैर तसल्ली बख्श, नाकिस और नाकाफ़ी हैं। हमसाया मुल्क मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत स्ट्रेटेजिक हथियारों को संभालने में तकनीकी खामियों को इंसानी गलती के नीचे छुपा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क को मिसाइल वाक़े पर मुश्तरका तहकीकात के लिए पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करना चाहिए। 9 मार्च को भारत ने मिसाइल फायर करके पूरे खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया था।
इजाफी टैक्स से परेशान शहरियों के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स मिन्हा करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद सादिक और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दी, जिसकी वजह से बिजली के निर्खों में इजाफा हुआ है। बिजली में फ्यूल एडजस्टमेंट कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं, लिहाजा इस इक़दाम को कल अदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने FPR और लेस्को को नोटिस जारी करते हुए 14 सितंबर को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि फ्यूल प्राइस सरचार्ज जून के महीने के इस्तेमाल पर लगा है। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों और ज़रई सारफीन पर फ्यूल प्राइस सरचार्ज ख़त्म कर दिया गया है। ताजरों पर फिक्स टैक्स का भी खात्मा कर दिया। आवाम अक्टूबर से बिजली के बिलों में बेहतरी महसूस करेंगे। आइंदा पाकिस्तान में बिजली का कोई मंसूबा दरआमदी ईंधन पर नहीं लगाएंगे। बिल जो है जो इस महीने आपको मौसूल हुआ है, उसमें आपकी बिजली की कीमत तो वो है जो आपने जुलाई में सर्फ की, लेकिन फ्यूल पर प्राइस सरचार्ज वो है जो आपने जून में सर्फ किया। वो तमाम सारफीन जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर उन पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था ख़त्म कर दिया गया है। जो ज़रई सारफीन हैं पाकिस्तान भर में जिनको ये फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगाया गया था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। ताजरों पर जो फिक्स्ड टैक्स लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। अक्टूबर से बहुत बेहतरी बिजली की कीमत में भी आपको अपने बिलों में महसूस होगी। उसकी भी एक पूरी तैयारी और इंतज़ाम कर लिया गया है। नए बिजली के कारखाने सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद ईंधन की बुनियाद पर लगेंगे और हम 1 मेगावाट भी अब इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर नहीं लगाएंगे। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। 7 सितंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। इदारों के अंदर बगावत पर उकसाने का इल्जाम। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिक अमान ने जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम से सैटेलाइट मोबाइल फोन और दीगर चीजें बरामद की गई हैं, जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट और तफ्तीश मुकम्मल करना बाकी है। इसलिए मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। मुल्जिम के वकला ने कहा कि जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं, फोन बरामद हो चुका है। मजीद रिमांड अदालती इख्तियार का गलत इस्तेमाल होगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत है, ना ही ये बताया गया कि टेस्ट कहाँ होगा। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि शहबाज गिल पर जिस्मानी टॉर्चर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जुडिशल इंक्वायरी की हदायत की है। वजारत दाखिला इस मामले पर इंक्वायरी ऑफिसर नामजद करे। 15 रोज मुल्जिम की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। पुलिस की जानिब से तफ्तीश में पेशरफ्त न होने के बायस जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मुल्जिम शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। इन्हें 7 सितंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए।